Good afternoon everyone, this is Anil Kumar Singh, your computer teacher, again with the new session of the MS PowerPoint, which is insert menu, and MS PowerPoint is the tool of MS Office. Here I am going to show you, I am going to teach you the basic features of the insert function, which is the part of MS PowerPoint main menu. There are 5 little functions of insert menu which I am going to teach you. The first one is table, the second one is illustration, third one is links, fourth one is text, and the fifth one is clips. Okay, in the table option I will show you how to create a table, and manage a table. Okay, in the next option, illustration, I will show you the insert function where you can insert the images, animations, clip arts, and smart arts, and charts. These are the options which are available in the illustration group, which is situated in the insert menu of MS PowerPoint. In the next menu you will find 2 options. First one is hyperlink, and second one is action. Okay, these 2 options are available in the link menu, link group, and link group is situated in the insert option. And the next one is text, where you can find the header and footer, text area, objects. Okay, these functions are available in the text area, where you can change your header and footer. You know very well what is header and what is footer. What is text area? You can write the text in the slideshow, so you can choose your text area. Object I will teach you when I will show you the PPT session. Next one is clips. There are only 2 clips are available. First one is movie clip, and second one is audio clips. Okay, you can use both of the clips in your slideshow whenever you required to show or to hear to the person, because these are the attractive function. Because you know very well, if the story of the movie I will tell you, you didn't ever learn the story. अगर मैं आपको बाहुबली की स्टोरी पढ़ के सुना दूं तो शायद आपको बाहुबली की स्टोरी समझ में ना आए, आप एक कथा सुन के उसे छोड़ दोगे। बट उस बाहुबली स्टोरी पे जब एक मूवी बनती है तो आपको हर एक सीन याद रहता है। क्यों? क्योंकि वो हमारी पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट हो जाती है। ऑडियो क्लिप्स, उसी बाहुबली में से मैं ऑडियो निकाल दूँ, उसका सारा का सारा बोलना, सारे के सारे डायलॉग्स निकाल दूँ, तो आपके लिए वो मूवी क्लिप भी बेकार हो जाती है। सो दीज 2 फंक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द insert menu for MS PowerPoint. So here we go for the PowerPoint session, where I will show you these all the function how to work in your slideshow. So let's go for the PowerPoint session. So after the board session, the PPT session has been started. Here I am going to tell you about the function of the MS PowerPoint. The new point of the MS PowerPoint is insert. So here I am going to tell you the insert tab, how the insert tab is working in the MS PowerPoint, and how you can use the insert tab to make your presentation very powerful and very attractive. So here we go. So first पीपीटी से हम स्टार्ट करते हैं। इंसर्ट की बात हम लोग कर रहे हैं, तो हेयर इंसर्ट का जो टैब है मैं आपको दिखा देता हूँ। थोड़ा सा शायद कट गया है, फिर भी मैं आपको शो करता हूँ। जो फर्स्ट टैब आपका कटा हुआ है
उसको भी मैं अभी दिखाऊंगा कि वो क्या है। टेबल है, सेकंड टैब आपका इलस्ट्रेशन का है, थर्ड टैब आपका लिंक का है। अगर आप गौर कर रहे हो ये लिंक हो गया, ये इलस्ट्रेशन हो गया, ये आपका टेक्स्ट है और ये आपका मूवी क्लिप्स है। जब हम पूरे पेज को लेते हैं तो थोड़े छोटे छोटे ऑब्जेक्ट नज़र आते हैं। तो हियर आई एम गोइंग टू क्रॉप एनी पॉइंट एंड शो यू व्हाट द टैब here. So first tab is table. Here you can make the tables whatever you want, how many cells you are required, how many rows and columns you are required, you wanted, you can make the table here from here. Okay, you can draw the table by looking the functions of this. मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप टेबल को ड्रॉ करते हो। सेकंड है इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन में आपके 5 ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, 5 ऑब्जेक्ट्स नहीं 6 ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं। इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से आप फिगर को कहीं ना कहीं कंटेन करते हैं अपनी स्लाइड्स में। जैसे अगर आपको पिक्चर की रिक्वायरमेंट है, यू कैन इंसर्ट द पिक्चर फ्रॉम हेयर, you can insert the clip art from here, you can insert the photo albums, you can insert the shapes you know, circle, rectangle, triangle, whatever shape you want. Smart art, नॉर्मल टेक्स्ट को आप स्मार्टली कैसे शो कर सकते हैं विदाउट एनी प्रैक्टिस या विदाउट एनी अदर एक्टिविटीज़। यू कैन यूज़ द स्मार्ट आर्ट। चार्ट्स, जब कभी कभी हम किसी कंपनी की प्रोग्रेस को अप या डाउन्स में दिखाते हैं तो वी कैन यूज़ द चार्ट। हम किसी स्कूल की, किसी कॉलेज की, किसी कंट्री की प्रोग्रेस को हम पावर पॉइंट में शो कर रहे हैं तो वी कैन यूज़ द चार्ट। तो ये चार्ट का यूज़ है। लिंक्स की अगर हम बात करें तो इसमें मेन जो ऑप्शन है या मेन जो पॉइंट है वो हाइपर लिंक का है। हाइपर लिंक्स मीन्स आप और फाइल्स को और ऑब्जेक्ट्स को और डेटा को जोड़ सकते हैं अपने स्लाइड्स से। एक्शन का मतलब होता है ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करना, उसको भी मैं शो करूँगा। इसका कहीं ना कहीं कुछ कनेक्शन हो जाता है, रिक्वायर्ड नहीं पड़ता है, आप लोगों को बहुत कम यूज़ करने को मिलता है। आप चाहें तो ना भी यूज़ करें तो भी काम चल ही जाएगा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं टेक्स्ट की। तो टेक्स्ट में आपका एक टेक्स्ट बॉक्स होता है। आप किसी भी स्लाइड के बीच में या कोने पे या फिर किसी भी इमेज के ऊपर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट की हेल्प से लिख सकते हैं। हेडर एंड फूटर यू नो वेरी वेल, आप लोगों ने पहले भी हेडर एंड फूटर देखे थे। तो यहाँ पे हेडर हेडिंग के लिए नहीं है क्योंकि उसने पहले से ही मेन टेक्स्ट के लिए जगह दे रखी है। तो हेडर का मतलब है आप अपर को थोड़ा सा ब्लैंक करके कुछ टाइप करना चाहते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं। फूटर का मतलब है बिल्कुल नीचे स्लाइड्स के नीचे कुछ कमेंट करना चाहते हैं, कुछ स्टार लगा के पॉइंट्स लिखना चाहते हैं। वर्ड आर्ट, आपके जो टेक्स्ट है उसको अलग अलग तरीके से शो करना। जैसे कि अगर वर्ड आर्ट की बात करें, हम एक एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो एप्लीकेशन हेडिंग को हमें बहुत स्पेसिफिक, बहुत ही कलरफुल, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना है तो हम वर्ड आर्ट का यूज़ कर लेते हैं। अभी मैं आगे आपको इन सब के स्नैपशॉट्स दिखाऊंगा जिससे आप लोग बहुत ही ईजिली समझ पाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। डेट एंड टाइम आपके हेडर एंड फूटर का ही एक हिस्सा है। आप डेट एंड टाइम और हेडर फूटर एक दूसरे के वाइस वर्सा हैं। आपको मैं वहाँ पे दिखाऊंगा कि जैसे अगर स्लाइड्स हैं, स्लाइड्स के नीचे आप चाहें कि आपका डेट और टाइम आए तो यू कैन ईजिली कंटेन द फीचर फ्रॉम हियर। स्लाइड नंबर, वैसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्लाइड्स के नीचे नंबर्स लिखे आए 1 2 3 4 5 6 तो यू कैन यूज़ द स्लाइड नंबर। तो इसकी भी कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है पर पता होना चाहिए। सिम्बल्स, डिफरेंट काइंड ऑफ सिम्बल्स यू कैन यूज़ विद द हेल्प ऑफ सिम्बल ऑब्जेक्ट। बहुत सारे सिम्बल्स होते हैं, हम ए को डिफरेंट काइंड में यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, वी को, सी को। सिम्बल्स के भी एक मैं आपको स्लाइड दिखाऊंगा। ऑब्जेक्ट्स मैंने बताया ना, आपकी पीपीटी को अगर मुझे कन्वर्ट करना है किसी पीडीएफ फाइल में तो मैं यहाँ से बेसिकली कर सकता हूँ, डायरेक्ट भेज सकता हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग आपका ये वाला हिस्सा है जिसे आप लोग मूवी क्लिप कहते हैं या क्लिप सेक्शन कहते हैं। इसमें आप मूवी, एक मैं आपको छोटी सी वीडियो इसमें प्ले करके दिखाऊंगा। ऑडियो साउंड में इसमें आपको 2-3 रिंगटोन सुनाऊंगा जिसे सुन के शायद आपको पिक्चर की फीलिंग आ जाए, ठीक है। और बाकी इंटरेस्टिंग है। चलो अब हम गौर करते हैं, एक एक स्लाइड के साथ आगे बढ़ते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, फर्स्ट वन इज़ टेबल। यू कैन सी द टेबल स्ट्रक्चर। टेबल स्ट्रक्चर की बात करें तो मैं आपको बिल्कुल इनराज करके दिखा रहा हूँ ये चीज़। इफ़ यू वांट द टेबल तो आप यहाँ से ना डायरेक्टली सेलेक्ट कर सकते हैं। ये जो आपके ऊपर शो होते हैं ये आपके कॉलम्स होते हैं, ये आपकी नंबर ऑफ़ रोज़ होती हैं, ठीक है, नीचे की तरफ जो दे रखे हैं। अगर मैं बात करूँ कि आपको 4x3 यानी 4 कॉलम्स और 3 रो का एक टेबल चाहिए अपनी स्लाइड्स में, तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये 4 कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे और फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ये आप यहाँ तक का एरिया एक साथ सेलेक्ट कर लेंगे। खाली माउस की क्लिक से सेलेक्ट कर लेंगे तो ये आपके
पूरी की पूरी जो टेबल है वो यहाँ ऐसे क्रिएट होके सामने आ जाएगी। 2 4 1 2। ओके, तो दिस काइंड ऑफ टेबल यू कैन डिज़ाइन फ्रॉम हेयर ओनली। पर आपको ज़्यादा कॉलम्स या ज़्यादा रोज़ चाहिए हों या बहुत ज़्यादा चाहिए हों कि हाँ मुझे बड़ी टेबल चाहिए, बड़े ज़्यादा रोज़ एंड कॉलम्स चाहिए, तो व्हाट विल यू डू, यू कैन क्लिक हेयर इंसर्ट द टेबल। जैसे ही आप इंसर्ट द टेबल क्लिक करेंगे आपके सामने एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स ओपन होके आएगा जिसमें फर्स्ट में लिखा होगा रो या कॉलम और नीचे लिखा होगा कॉलम या रो। तो जितनी रोज़ चाहिए तो आप यहाँ टाइप कर सकते हैं, जितने कॉलम चाहिए आप यहाँ टाइप कर सकते हैं। जैसे ही आप उस पर क्लिक करके ओके करेंगे उतनी ही रोज़ और कॉलम की टेबल आपके सामने प्रेजेंट हो जाएगी। क्लियर है, इतनी सी बात। ड्रॉ द टेबल, आप माउस की क्लिक पे यहाँ टेबल ड्रॉ कर सकते हैं अपनी डिज़ाइन के हिसाब से, तो यू कैन ड्रॉ द टेबल। ओके, एक्सेल स्प्रेडशीट मीन्स आप किसी स्प्रेडशीट को अपनी पावर पॉइंट पे शो कराना चाहते हैं, आप स्प्रेडशीट को पूरा का पूरा लाना चाहते हैं, तो यू कैन इम्पोर्ट द एक्सेल शीट फ्रॉम हेयर। ओके, एक्सेल शीट जिसके बारे में मैं आपको इस पावर पॉइंट पूरी ख़त्म हो जाने के बाद में एक्सेल शीट शुरू करने वाला हूँ। तो एक्सेल शीट का जो मेजर कॉन्सेप्ट होता है वो रो एंड कॉलम पे ही होता है। एक्सेल शीट की अगर बात करें तो एक्सेल शीट का मतलब ही होता है देयर आर मल्टीपल रोज एंड मल्टीपल कॉलम्स। ओके, एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज रोज एंड कॉलम्स आर कॉल्ड सेल्स। ओके, दिस इज़ द सेशन ऑफ टेबल। तो आप टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। मान लीजिए आप किसी फिगर को समझा रहे हैं, उस फिगर में बहुत सारे छोटे छोटे कंटेंट हैं, तो आप उन कंटेंट को टेबल की हेल्प से समझा सकते हैं। आई होप आई एम क्लियर। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। सेकेंड ग्रुप इज इलस्ट्रेशन ग्रुप, और इलस्ट्रेशन ग्रुप का पहला ऑब्जेक्ट है इंसर्ट पिक्चर। देखिए मैंने इंसर्ट पिक्चर को नीचे टाइप भी किया है इसलिए ताकि आपको ईजिली समझ में भी आ जाए। ओके, इंसर्ट पिक्चर के लिए बेसिकली आपको करना क्या होता है, ओके, इंसर्ट पिक्चर के लिए फर्स्टली यू हैव टू क्लिक ऑन द पिक्चर मेन्यू। जैसे ही आप इस पिक्चर वाले ऑब्जेक्ट पे, पिक्चर वाले आइकन पे क्लिक करते हैं, आ डायलॉग बॉक्स विल बी अपीयर लाइक दिस। अब ये डायलॉग बॉक्स जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, तो आपको अपना ऑब्जेक्ट चूज़ करना है कि कहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है। ओके, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा C ड्राइव, E ड्राइव, F ड्राइव, G ड्राइव। ऐसे ही आपका डेस्कटॉप भी कहीं होगा, तो ये आपका डेस्कटॉप है, डाउनलोड्स हैं। तो जहाँ पे भी आपकी इमेज है वहाँ पे आप क्लिक करिए। जैसे कि मैंने कहाँ लिखा है विंडोज़, विंडोज़ के यूज़र विंडो, डेस्कटॉप, प्रेजेंटेशन क्लासेस, PPT और इंसर्ट। तो मुझे यहाँ से इमेज चाहिए थी तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, और जैसे ही मैं इसे सिलेक्ट करूँगा बैकग्राउंड पे या फिर जहाँ पे मेरी स्लाइड है वहाँ पे मेरी इमेज आ जाएगी। तो दिस इज़ द मेथड या दिस इज़ द वे टू इंसर्ट अ पिक्चर इन योर स्लाइड। ओके, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई वांट टू से। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। इलस्ट्रेशन का सेकेंड पार्ट है क्लिप आर्ट। मैंने क्लिप आर्ट के 2-3 एग्जाम्पल्स भी आपको सामने शो करे हैं, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो दिस इज़ द एग्जाम्पल्स ऑफ क्लिप आर्ट। एनिमेशन, दिस सम फिगर्स और दिस योर शक्ल, योर पांडा। ओके, आपकी नहीं तो मेरी शक्ल तो मैच करती है इससे, स्मार्ट बॉय। सो ये एनिमेशंस आप कहीं ज़्यादा दूर से नहीं ले रहे हैं। आप देखेंगे ये कोने में ना एक ये फिगर चल रहा है, ये लाइन चल रही है, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो इट्स नॉट अ बिग डील कि ये देखो दिखाई दिया कोने में, ये सब आपका क्लिप आर्ट है, और मैंने यहीं से इन फिगर को, ये बाय डिफ़ॉल्ट आपके स्लाइड शो में पड़े रहते हैं, आपकी प्रेजेंटेशन एरिया में पड़े रहते हैं। तो आप इन्हें क्लिक करोगे और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी क्लिप आर्ट आप यूज़ कर सकते हो। ये भी इंसर्ट के इलस्ट्रेशन ग्रुप में होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। एग्जाम में पूछने वाली जो टर्म है वो यही है, इन विच ग्रुप द क्लिप आर्ट आइकन और क्लिप आर्ट ऑप्शन इज़ अवेलेबल इन द इंसर्ट मेन्यू। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, तो प्लीज़ इन सब चीज़ों को, इसीलिए मैं आपको बहुत स्पेशली बहुत मेहनत करके ये सारी चीज़ें लेके आता हूँ ताकि आप यहीं पे सारी चीज़ें पढ़ लें और जब आप लैब में आए तो उनका डायरेक्टली यूज़ करें। ओके, इन द नेक्स्ट पार्ट इलस्ट्रेशन का थर्ड पार्ट है स्मार्ट आर्ट। ओके, स्मार्ट आर्ट जिसके बारे में मैं बात कर रहा था कि यहाँ पे आप नेम्स लिख के अपनी विदाउट एनी मेहनत, विदाउट एनी हार्ड वर्किंग, यू कैन यूज़ दिस स्मार्ट आर्ट टू मेक योर ऑब्जेक्ट, टू मेक योर सेंटेंस, टू मेक योर टेक्स्ट वेरी अट्रैक्टिव। ओके, इनमें से किसी भी स्मार्ट आर्ट को आप यूज़ करेंगे, किसी भी चीज़ को, और इसके टाइप भी दे रखे हैं, साइकिल्स में दे रखा है, प्रोसेस में दे रखा है, लिस्ट में दे रखा है, ठीक है, मैट्रिक्स में दे रखा है, पिरामिड्स में दे रखा है। तो जैसा स्मार्ट आर्ट आपको चाहिए आपकी फिगर के लिए, यू कैन यूज़ द स्मार्ट आर्ट फ्रॉम हियर।
और जैसे आप इसे यूज़ करेंगे स्मार्ट आर्ट को, आपकी फिगर अलग ही दिखेगी, एक तरीके से ऐसा ग्लो आएगा उसमें। क्योंकि एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए आप एक कंपनी के ग्रोथ को शो कर रहे हैं, एक कंपनी के एम्प्लॉयज़ को शो कर रहे हैं, तो कंपनी के एम्प्लॉयज़ को आप डायरेक्टली नाम लिख के लिखेंगे तो वो नॉर्मल एक वर्ड हो गया, आप मतलब एक नॉर्मली वो शो होगा। लेकिन आप अगर स्मार्ट आर्ट यूज़ करेंगे कि हाँ एक पिरामिड बनाते हैं, सबसे पहले GM होता है, फिर AM होता है, फिर मैनेजर्स होते हैं, फिर सुपरवाइज़र्स होते हैं, फिर वर्कर्स होते हैं, फिर 4th क्लास होते हैं। तो इस तरीके से अगर आप एक ग्रिड लेके, पिरामिड लेके या हायरार्की लेके आप बनाओगे तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट या इम्प्रेशन बहुत ही खूबसूरत जाता है, बहुत ही अट्रैक्टिव होता है। ओके, सो आई थिंक इफ़ यू विल यूज़ द स्मार्ट आर्ट इन योर presentation label will be growing up. Okay, so I think you should use it when you will use the PowerPoint presentation. Okay, go to the next slide please. Okay, illustration का next part है chart. Basically we are using the chart for the progress report. Maximum time we can use the chart for the progress report. Like अगर मुझे एक स्टूडेंट की प्रोग्रेस रिपोर्ट देखनी है जनवरी से लेकर दिसंबर तक, तो हर एक मंथ का मैं चार्ट बनाऊंगा, हर एक मंथ का एक मैं डेटा बनाऊंगा और उस डेटा को ना मैं एक चार्ट के थ्रू बहुत इजीली देख सकता हूं। अब हर महीने मैं ये देखूं मार्क्स, यानी एक पहले महीने उसका जो टेस्ट था वो 100 में से था, दूसरे महीने उसका 400 में था, तीसरे महीने उसका 500 से था, फिर 1000 से था, फिर 1200 से था। तो कहीं ना कहीं मैं पहले मार्क्स को ऐड करूँ, फिर उनका परसेंटेज निकालूं, तो मेरे समझ में आएगा कि हाँ उसका ग्रोइंग लेवल कैसा है। इसलिए मैं सारे के सारे डेटा को सिलेक्ट करके बस एक चार्ट से अगर सेलेक्ट कर लेता हूँ तो उसका जो ग्रोइंग डेटा है ना कुछ इस फॉर्म में आएगा। अगर वो ग्रो कर रहा है दैन उसका डेटा ऐसे ऐसे जाएगा, अगर वो लॉस कर रहा है तो उसका डेटा कुछ ऐसे जाएगा, अगर वो कभी ग्रो और कभी लॉस करेगा तो कभी अप जाएगा वो डेटा, कभी डाउन आएगा, कभी अप जाएगा, कभी डाउन आएगा। ठीक है, ये तो अब पहाड़ बन गए दो। ठीक है, तो इस तरीके से डेटा को शो करने के लिए, डेटा रिप्रेजेंटेशन के लिए कि ईजिली अंडरस्टूड हो, हम लोग चार्ट का यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट प्लीज़। ओके, इलस्ट्रेशन ग्रुप फिनिश हो गया। इलस्ट्रेशन ग्रुप में अगर किसी को कोई भी कन्फ्यूज़न है तो यू कैन आस्क मी। एक ऑप्शन है उसमें फ़ोटो एल्बम का, तो फोटो एल्बम इज़ नथिंग, यू कैन यूज़ द ग्रुप ऑफ फोटोज़ टू शो योर डेटा ईजिली। जैसे आप अगर किसी को फेसबुक के बारे में बता रहे हो, फेसबुक के आप बहुत सारे फीचर्स का एक ग्रुप बना लो, एक एल्बम बना लो, उसको शो करते जाओ, तो दैट इज़ फोटो एल्बम, नथिंग एल्स। ओके, नेक्स्ट वन इज लिंक्स। लिंक्स का मेन पार्ट होता है हाइपरलिंक, और हाइपरलिंक का मतलब है वो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को आपकी प्रेजेंट स्लाइड में शो करना। तो यहाँ पे अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो ये जो सारे दिखाई दे रहे हैं ना, जो PPT बनी हुई है, ये लिंक से मैं यहाँ पे डायरेक्टली अटैच कर सकता हूँ। अगर मैं इसे क्लिक करूँगा तो इसका लिंक बन जाएगा और लिंक यहाँ पे डिस्प्ले होने लगेगा। जैसे ही मैं उस पर क्लिक करूँगा तो जो भी मैंने इसमें से डेटा लिया होगा वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। मैं ऐसे लिंक्स भी ले सकता हूँ जो मुझे यूट्यूब के डायरेक्ट वीडियोज़ पे ले जाएँ, मैं ऐसे लिंक भी ले सकता हूँ जो किसी इमेज पे जाएँ, मैं ऐसे लिंक्स भी ले सकता हूँ जो वर्ड फाइल, एक्सेल फाइल, पावरपॉइंट फाइल, डेटाबेस फाइल, किसी भी फाइल्स को अटैच करने में आपकी हेल्प कर सकता है। तो हाइपरलिंक का हमेशा यूज़ किया जाता है किसी भी डेटा को या डेटा ऑब्जेक्ट को आपकी करंट स्लाइड से जोड़ने के लिए। ठीक है, ये होता है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक का मतलब ये नहीं होता है कि मैंने अपनी पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन से किसी दूसरे की पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन मैं जोड़ वो भी सकता हूँ, लेकिन सिर्फ पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन को जोड़ना ही हाइपरलिंक नहीं कहलाता। उससे आप कुछ भी जोड़ सकते हैं, किसी भी तरीके की फाइल, किसी भी तरीके की फाइल आप डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं लिंक बना के। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। ओके, लिंक्स का सेकेंड ऑप्शन है आपका एक्शन। अब एक्शन आपके दो तरीके से हैं, एक माउस क्लिक पे है, एक डायरेक्ट एक्शन है। तो मैंने क्या किया है, नन को हटा के माउस क्लिक पे लिखा है। माउस क्लिक पे क्या है, जैसे ही मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाने लगूँ या जब जो स्लाइड पे चल रहा हूँ उसके प्रीवियस स्लाइड पे, तो ये सारे के सारे एक्शंस के कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट्स हैं। जैसे आप मान लीजिए कि एक हाइपरलिंक लगाते हैं, एक एक्शन लगाते हैं उस पर सिर्फ ये कि जैसे ही मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जंप करूं उसमें एक मूवी चलने लगे रहो मुन्ना भाई, या भगवान कृष्ण का एक सीरियल चलने लगे, राधा कृष्ण। तो इस तरीके एक्शंस लगाना अपने स्लाइड शो में ये भी अवेलेबिलिटी प्रोवाइड कराता है। अब वो माउस क्लिक पे लगाएंगे या फिर आप एक पर्टिकुलर टाइम के लिए लगाएंगे, आप दोनों चीज़ें यहाँ से कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं टेक्स्ट की। तो टेक्स्ट में सबसे पहला जो ऑप्शन है, अगर आप लोगों ने गौर किया हो, ये ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन इज टेक्स्ट बॉक्स।
तो टेक्स्ट बॉक्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा नहीं, मैं आपको डायरेक्टली दिखाता हूँ। जो मैंने ये हेडर फुटर लिखा है इसमें, इट इज़ अ टेक्स्ट बॉक्स। ओके, पीछे की स्लाइड्स में अगर आपने गौर किया हो तो जो मैंने ये रेड कलर का सब कुछ लिखा हुआ है, दिस इज़ टेक्स्ट बॉक्स। और पीछे जाएंगे, हाइपरलिंक, दिस इज़ अ टेक्स्ट बॉक्स। एक्शंस, दिस इज़ अ टेक्स्ट बॉक्स। हेडर एंड फुटर, दिस इज़ अ टेक्स्ट बॉक्स। तो मैंने टेक्स्ट बॉक्स को आपको यहाँ पे करंट एग्जाम्पल में दिखाया है कि मैं इस टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ कहीं भी कर सकता हूँ। स्लाइड के ऊपर, किसी इमेज के ऊपर मुझे कुछ लिखना है तो भी मैं टेक्स्ट बॉक्स यूज़ कर सकता हूँ। स्लाइड के ऊपर लिखना है तो भी, किसी वीडियो क्लिप पे भी अगर मुझे लिखना होगा ना तो मैं टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ कर सकता हूँ। तो टेक्स्ट बॉक्स का मतलब ये होता है। सेकंड है आपका हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं एमएस वर्ड में। हेडर का मतलब होता है हाईएस्ट पोर्शन, फुटर का मतलब होता है लोएस्ट पोर्शन। हाईएस्ट पोर्शन में अगर आपको कुछ लिखना है, यू कैन यूज़ द हेडर। लोएस्ट पोर्शन में आपको लिखना है तो आप क्या करते हैं, यूज़ फुटर। अब यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें शो हो रही होंगी, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे अगर स्लाइड्स में क्या है, डेट एंड टाइम बाय डिफ़ॉल्ट हमें दिया होता है, इसको हम अपडेट कर सकते हैं यहाँ से। आप किस तरीके की डेट एंड टाइम चाहते हैं। लैंग्वेजेस हैं, फिक्स करना है कि यही डेट एंड टाइम हमेशा शो करे या फिर अपडेट होती रहे। जैसे जैसे आपका डेट ऑफ टाइम बदलता है तो वो बदलती रहे। जैसे मान लो आज मैंने अगर ये स्लाइड बनाई है तो टुडे इज़ जो भी डेट है, तो नेक्स्ट डेट पे जैसे ही जैसे मान लो उसका प्रेजेंटेशन मुझे कल देना है, तो अगर मैं डेट फिक्स कर दूंगा ना तो वो आज की डेट शो करेगा। और अगर मैं डेट को फिक्स नहीं करूँगा तो क्या होगा, वो जिस डेट में ओपन होगी स्लाइड उस डेट को शो करेगा। अब इसमें और भी ऑप्शन है। जैसे अगर आप गौर कर रहे होंगे तो एक स्लाइड नंबर है, तो आप यहाँ पे अगर क्लिक कर दोगे ना स्लाइड नंबर पे, तो आपकी स्लाइड के बिल्कुल बॉटम में, बिल्कुल मिड में नंबर्स आना शुरू हो जाएंगे। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरीके से कि आप कौन सी स्लाइड पे हैं, इससे आपको उससे पता रहेगा। फुटर पे एक मैसेज लिखते हैं। फुटर पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपको ये जो वैल्यू है ना वो शो होने लगेगी और इस पर आप कुछ ना कुछ टाइप कर सकते हैं कि हमेशा फुटर पे मुझे ये दिखाई दे। कुछ लोग होते हैं फुटर पे अपना वाटर मार्क लगाते हैं, कुछ लोग फुटर पे कुछ ना कुछ वैल्यूज़ लगाते हैं, कुछ लोग फुटर पे वर्ड मीनिंग लगाते हैं, जो भी जिसकी जैसी इच्छा हो। और ये सारी चीज़ें करने के बाद हम क्या करेंगे, अप्लाई टू ऑल। जैसे ही आप अप्लाई टू ऑल पे क्लिक कर लेंगे तो सारी स्लाइड्स पे आपके ये जो हेडर एंड फुटर हैं वो अप्लाई हो जाएंगे। और अगर आप सिर्फ अप्लाई करेंगे तो आपकी करंट स्लाइड पे सिर्फ अप्लाई होगा। इन दोनों चीज़ों का गौर रखिएगा। इसमें जो सेकंड ऑप्शन है नोट्स एंड हैंड आउट, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। यस, नोट्स एंड उसमें भी यही चीज़ है, डेट्स एंड टाइम। आपको अगर गौर आ रहा हो, डेट्स एंड टाइम अपडेट ऑटोमेटिकली। अगर आप डेट नहीं करेंगे तो वो शायद आपके सिस्टम के हिसाब से आगे पीछे हो सकता है। सेम लैंग्वेज, हेडर में हमने कुछ लिखना है तो हम वो लिख सकते हैं, यानी अपना कुछ वर्ड लिख सकते हैं। पीछे फुटर था ना, ऐसे ही पेज नंबर पे टिक किया तो पेज नंबर शो होने लगेगा। फुटर पे भी टिक किया तो नीचे फुटर भी शो होने लगेगा। तो नोट्स और हैंडआउट का मतलब यही है कि आप उसमें बताना चाहते हैं, अपनी स्लाइड में कुछ ना कुछ नया करना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि आपकी हर एक स्लाइड के अपर साइड एंड बॉटम साइड दोनों सेम दिखाई दे, एक तरीके से आपका कॉपीराइट उसमें दिखाई दे, तो आप लोग अपने हेडर और फुटर में कुछ ना कुछ टाइप कर सकते हैं। ओके, किसी को कोई अगर प्रॉब्लम हो, समझ ना आया हो, तो यू कैन टेक्स्ट मी, यू कैन टोल्ड मी वॉट एवर यू डोंट अंडरस्टैंड इन द वीडियो। ओके, नेक्स्ट। ओके, टेक्स्ट का नेक्स्ट पार्ट है आपका वर्ड आर्ट। मैंने ये जो वर्ड आर्ट लिखा है वो वर्ड आर्ट की हेल्प से ही लिखा है। इसमें से मैंने इस इमेज को चूज़ किया था और इस इमेज का मैंने कलर भी बदल दिया, रेड कलर कर दिया। तो यहाँ से आप किसी भी एक स्टाइल को सेलेक्ट करके अपनी इमेज को बहुत खूबसूरत बना देते हैं। लाइक इफ़ यू आर राइटिंग एन एप्लीकेशन, राइटिंग अ लेटर टू योर प्रिंसिपल, टू योर कॉलेज प्रोफेसर, सो द वर्ड एप्लीकेशन लुक बी वेरी ब्यूटिफुल, बिकॉज वो एक तरीके से आपका मेन कंटेंट होता है कि वो एप्लीकेशन है, लेटर है, किस चीज़ के लिए है, डिपेंड करता है। तो वर्ड आर्ट के थ्रू हम अपने वर्ड्स को, हम अपने जो टेक्स्ट है, जो हमारा करंट टेक्स्ट है, कह सकते हैं जो मेन हेडिंग है, उसको बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा कलरफुल बना सकते हैं। ठीक है, तो वर्ड आर्ट का यूज़ ये होता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। ओके, अगेन डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम के बारे में हम अभी बात करके आए हैं सेकेंड लास्ट स्लाइड में, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि हेडर एंड फुटर के साथ ही अगर आप गौर करेंगे तो वही एक ऑप्शन है आपको अगर सबसे ऊपर दिखाई दे रहा हो ना, तो दिस इज़ हेडर एंड फुटर। हेडर फुटर के अंदर ही डेट एंड टाइम फिक्स करने का तरीका है। ओके, तो दोबारा रिपीट करने की ऐसी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है।
ओके, सिंबल्स जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, बेसिकली सिंबल्स तो हमें हमारे कीबोर्ड पे भी मिल ही जाते हैं। यहाँ पे सिंबल्स हैं, जैसे ये कॉपीराइट का सिंबल है, ये ए का सिंबल है, इस तरीके के सिंबल्स हैं। तो और आप अपने सिंबल्स की लैंग्वेज को बदल सकते हैं। आपको अगर ये गौर से दिखाई दे रहा हो ना, ये फ़ॉन्ट, जैसे ही आप फ़ॉन्ट बदलेंगे तो आपके जो सिंबल हैं इनके स्टाइल भी चेंज हो जाएंगे। जैसे अगर आपने जो देखा होगा तो आपके फ़ॉन्ट के बहुत सारे स्टाइलिंग होती हैं, तो उन स्टाइलिंग को जैसे ही आप चेंज करेंगे, यहाँ पे सिंगल के टाइप भी बदल जाएंगे, सिंबल के स्टाइल भी बदल जाएंगे। बाकी जो आप यूज़ कर सकते हैं मैथमेटिक्स वगैरह के, आपके देखें अंडर रूट वगैरह, मल्टीप्लाई, डिवाइड, एक्सेट्रा, पाई, ये सारे के सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो यू कैन यूज़ द सिंबल्स फ्रॉम हेयर वॉट एवर सिंबल यू वॉन्ट इन योर स्लाइड। आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, और प्रॉब्लम अगर हो रही है तो आप मुझे बता सकते हैं बिल्कुल बेझिझक। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। ओके, ऑब्जेक्ट्स की अगर हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, तो किसी भी डॉक्यूमेंट को कन्वर्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे देखो, पहला ही ऑप्शन है एडोब एब्रोकेट डॉक्यूमेंट, दूसरा है एडोब एब्रोकेट, ठीक है, तीसरा एब्रोकेट सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट, बिटमैप इमेजेस, ये आपकी फ़ॉन्ट उसकी पेंट की इमेजेस होती हैं, फ्लैश डॉक्यूमेंट है, माइक्रो सर्टिफिकेशन है। तो ये सब चीज़ें हम ऑब्जेक्ट्स की हेल्प से कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। इसका यूज़ आप लोग जब लैब में आएंगे आपको करके दिखाया जाएगा, अगर रिक्वायरमेंट होगी, टाइम होगा तो बिल्कुल मैं आपको, आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है वैसे ये, लेकिन फिर भी आप लोगों को पता होना चाहिए ऑब्जेक्ट वगैरह क्या होते हैं, यूज़ क्या होता है इनका। सो यू कैन यूज़ इट। अगर आपके पास सिस्टम है तो आप यूज़ करके देखिएगा अपने घरों में। नेक्स्ट प्लीज़। ओके, ये है आपका सबसे इम्पॉर्टेंट हो या ना हो, सबसे इंटरेस्टिंग ज़रूर है, क्योंकि हम यहाँ पे वीडियो क्लिप्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम मान लीजिए कोई बहुत ही प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, हम एक डिवोशनल प्रेजेंटेशन दे रहे थे, हम बताने जा रहे थे दुनिया को कि व्हाट इज़ कृष्ण जी, व्हाट इज़ राधा जी, इसके बारे में चलो एक टॉकिंग हो रही थी। तो मैंने क्या किया, मैंने एक वीडियो लिया है। तो लेट्स सी द वीडियो। देखिए, मैं इसी में आपको वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ। आई थिंक सभी को विजिबल भी हो रहा होगा और सुनाई भी दे रहा होगा। ओके, आई थिंक सभी को ये वीडियो क्लिप सुनाई और दिखाई दिया होगा। तो दिस वीडियो क्लिप यू कैन यूज़ एनीवेयर, मतलब सिर्फ दिस वीडियो क्लिप नहीं, इस तरीके की छोटी छोटी वीडियो क्लिप्स जो होती हैं हम लोग अपनी प्रेजेंटेशन में यूज़ कर सकते हैं। ये एक डिवोशनल वीडियो क्लिप था जिसमें कृष्ण जी और राधा जी का कन्वर्सेशन दिखाया गया था। ओके, तो इस तरीके से अगर मान लीजिए आप किसी कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे हैं तो यू कैन यूज़ द वीडियो क्लिप्स फ्रॉम द सिस्टम। लेकिन एक बात गौर करिएगा, जिस भी वीडियो क्लिप को आप यूज़ कर रहे हैं वो वीडियो क्लिप आपके फ़ोन में या फिर आपके डेस्कटॉप पे होनी चाहिए। मान लीजिए आपने दूसरे डेस्कटॉप पे प्रेजेंटेशन बनाई है और दूसरे डेस्कटॉप पे जाके उस प्रेजेंटेशन को रन कर रहे हैं, तो वो प्रेजेंटेशन आपकी रन नहीं होगी। रीज़न बिहाइंड दैट कि आपने जो क्या बोलते हैं जो सिस्टम यूज़ किया था प्रेजेंटेशन या वीडियो को जोड़ने के लिए, अब वो सिस्टम नहीं है, तो वीडियो तो वहीं रह गई। तो वीडियो का कहीं ना कहीं सोर्स फाइल होना ज़रूरी है। ऐसे ही मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट में। दीज आर द ऑडियो क्लिप्स। सो गौर से सुनिएगा, दीज आर द फेमस साउथ इंडियन रिंग टोन्स फॉर यू। फर्स्ट वन इज, पहचानिए क्या है। दिस इज द फेमस मूवी, कोई बताएगा? आई नो सभी को समझ में आ गई होगी। दिस इज KGF रिंगटोन। सो दिस इज ऑडियो फाइल विच यू कैन यूज़। चलो इसे हम थोड़ी देर शांत कर देते हैं, सेकंड ऑडियो को सुनते हैं। तो डोंट डांस, ये डांस करने के लिए नहीं है, सिर्फ सुनने के लिए है। आई नो नाचने का काफ़ी मन कर रहा होगा आपका। ओके, इसे भी हम रोक देते हैं। पता चला सब लोग, आप लोग डांस ही करने लगे। थर्ड और सुन लेते हैं। So these are the audio clips. Okay. चलिए रोक देते हैं।
सो दीज आर द ऑडियो सिंबल्स, आप लोग गौर से देख ही रहे होंगे। तो ये ऑडियो सिंबल बताते हैं, इस पर आप माउस की क्लिक से या फिर आपके पास अगर फ़ोन्स हैं तो आप लोग नॉर्मली टच करके उसे यूज़ कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी ऑडियो और वीडियो क्लिप्स को। ओके आप मैंने ये रिंगटोन्स ली हैं, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से किसी की स्पीच ले सकते हैं, किसी का सॉन्ग ले सकते हैं, किसी के मतलब जैसा भी आप लोग चाहें। आपकी ऑडियो होनी चाहिए, आप खुद की रिकॉर्डिंग डाल सकते हैं, मतलब आप अपना ऑडियो रिकॉर्ड करें, आप गाना गाएं और रिकॉर्ड करके आप लगा दें या भेज दें। वो अलग की बात है कि लोगों के कानों में से खून निकलेगा, बट इट डजेंट मैटर, ठीक है, बट आप यूज़ कर सकते हैं। तो इट्स योर गुडनेस और आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं। सो दिस इज़ इट फ्रॉम द इंसर्ट मेन्यू। अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी को कुछ समझ में ना आया हो, सो यू कैन आस्क मी एनी टाइम, आप पूछ सकते हैं मुझसे बिना बेझिझक। तो दिस इज़ इट फॉर टुडे एंड आई होप आप सभी अपने घर में रह के बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, बहुत ही अच्छी तैयारी कर रहे होंगे, स्टडी की कर रहे होंगे, ताकि आप आने वाले टाइम में स्कूल में आके डायरेक्ट अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर पाएँ। ओके, सो दिस इज़ इट फ्रॉम अनिल कुमार सिंह, योर कंप्यूटर टीचर, आपका होस्ट, आपका दोस्त। आगे भी आप लोग से इंटरेक्ट करता रहेगा। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए अनिल कुमार शो। ठीक है, थैंक यू सो मच।